I would like to request our guest of honor, Honorable MLA Katak Warbati, Engineer Mohammad Makil, to kindly deliver his address, please, sir. सबको नमस्कार. Respected Chairperson Dr. Sema Kanungo, Organizing Secretary Dr. Vijay Nidas, our esteemed chief guest, the first National Sri Aurobindo Maya Pathachakra Conference, Madam Dr. Jayanti Ravi. I would like to welcome her on behalf of the people of Cuttack. Our guest of honor, Dr. Alok Pandey from Pondicherry. All the members of the organizing committee, speakers, delegates from the different provinces of the country and from our state. It gives me immense joy to see so many individuals intent on rebuilding the society with a spirituality that does not neglect life but makes life progress in the direction of true values. When society is deteriorating on many sides, it is the duty of every person to rectify it. In this significant year of 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, who gave the first call of Purna Swaraj and worked against the division of our great nations, also coincides with the 75th anniversary of our freedom. It is heartening to see that women are taking leadership in changing the society for a better, happier, with peace and prosperity, not only for the progress of this state, but sensitizing other persons, other provinces of the country. Orissa is foremost among all other provinces in studying Sri Aurobindo and developing his thoughts in different dimensions from holistic living, integral education, health, technology, literature, visual and performing arts, commerce, agriculture, etc. In fact, all aspects of life are being taken up. Today's forum is engaged in awakening women to fulfill their true role in constructing a society with highest values of peace, prosperity and all-around progress. I understand many issues of women's health and prevention of dreaded diseases like cancer are being disseminated among the participants by eminent experts in the field. Notable national level speakers have come to illuminate all regarding the different aspects of developing the personality. I will salute our chairpersons and organizing secretary and their team who sincerely, dedicatedly organizing this historical seminars, conference. This is my first meeting. I joined in Sri Aurobindo's this conference. First I went to Matru Bhavan for a preparatory meeting. I was so impressed with both the ladies and their committee members
seeing their dedication, sincerity, I believe कि every person जो माने ओडिशा रु आसचंदी विभिन्न प्रांतरु और different parts of this different states, we should learn one thing. एक अच्छा सोल, एक अच्छा दिल, एक अच्छा व्यक्ति का इट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. अगर मन का पवित्रता होगा तो हमें घृणा, हमें क्रोध, हमें ईर्ष्या, हमें लोभ, सबसे हमें मुक्ति मिलेगी. हमें अच्छा जीवन यापन करेंगे दुनिया में. अपने को, अपनों के लिए, साथियों के लिए, लोगों के लिए हमें जीना चाहिए. लोग कुछ दिन तक अपने लिए जीना चाहते हैं. मैं तो बोलूंगा इसमें आनंद है. मैं खुद इसको फील कर रहा हूं, निजे या अनुभव करूची. इतने आनंद अच्छी, इतने खुशी है कि हम अगर किसी लिए काम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है. श्री अरविंद का जो शिक्षा है, धर्म से ऊपर उठ के अगर सोचा जाए मानव जाति के बारे में तो आपको सब कुछ सही दिखेगा. आपकी हर काम सही दिशा में जाएगा और ये शिक्षा हमें लेना है. समस्त को धन्यवाद देवी. सब आसी ये पहुंची. निश्चित रूपे 2 दिन धरी अधिवेशन चलो. बहुत किसी आम ये शिक्षा लाभ करवा. बहुत किसी आमर दैनंदिन जीवन में या काम देव एवं समस्ते तंकरी बताए हुए रास्ते पे अगर हम अनुसरण करेंगे, हम चलेंगे, हमें जो चलवा निश्चित रूप एक सुंदर विश्व तैयारी हम, सुंदर परिवेश तैयारी हम. जो माने खराब सोल अच्छा आम हावी हवा तराजू आम पला भारी रहिबो. देश विश्व सब सुंदर बाटे ठीक डायरेक्शन में चलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम एवं ऑर्गेनाइजिंग समस्त को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. मैडम हमारे बीच में आई हुई हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. पूरे कटक वासियों की तरफ से, उड़ीसा की तरफ से. दिस इज ए हिस्टोरिकल सिटी, 1000 ईयर ओल्ड सिटी. ये शहर हमें, दिस सिटी इज फेमस फॉर ब्रदरलीहुड, भाईचारा. कटक मीन्स दिस इज ए भाईचारा का शहर है. सो अगर इसको हम सारे विश्व में फैलाएंगे तो सारे विश्व में एक बहुत बढ़िया वातावरण सृष्टि होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you, sir, for sharing your thoughts and views with us today. And yes, of course, Cuttack is a historical place. And 52 बजार 53 गड़ी तार तो सब बड़ हो भाईचारा. हाँ कि ना. एंड इनका सिर्फ आप लोग को कटक ही देखने को मिलेगा. एंड जितने सारे हमारे गेस्ट हैं जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप जितना समय यहाँ पे हैं घूमिए कटक में और मजे लीजिए कटक का. चाहे खाना हो, चाहे लोग हो, चाहे वो प्यार हो. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस. एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल स्पीच यू हैव गिवन. तो जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर आवर गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल MLA Cuttack Barbati, Engineer Mohammad Mokim. So moving ahead to our next guest. So now I would like to request our guest of honor, Dr. Alok Pandey from Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, to kindly address the gathering, please, sir. मैं जब बाहर खड़ा होके
आर्मी ऑफ लाइट का मार्च देख रहा था, उसके बाद वंदे मातरम गायन हो रहा था, तो हृदय में एक भाव उठा और उस भाव को मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये भूमि इस समय एक यज्ञ वेदी बन गई है और इस यज्ञ वेदी से असंख्यों लपटें प्रकाश की, अग्नि की, सबके हृदय से उठती हुई पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलती हुई जगत जननी श्री माँ के चरणों में जा रही हैं निवेदित होकर। उस समय श्री अरविंद का एक वाक्य, महावाक्य स्मरण हुआ, द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड। पूछते मुझसे कई बार लोग, बहुत जगह भ्रमण करता हूँ, भगवान ने ये कार्य दिया है कि श्री अरविंद ने इतना कुछ लिखा है भारतवर्ष के बारे में, कहाँ उठ रहा है भारत? ऑफ कोर्स अब तो आंखों से दिखने लगा है। तो मुझे एक कहानी याद आती है और उसके हिसाब से मैं उन लोगों को बताता हूँ कि भारत उठ रहा है लेकिन तुम गलत जगह पर देख रहे हो। ये आज जो हमने सुबह सुबह देखा, ये भारत उठ नहीं रहा है तो क्या है? कोई भी चीज जब उठती है तो पहले अंदर की ओर, अंदर से उसके अंदर कोई चीज जलती है अग्नि की तरह, प्रचंड होकर, एक आत्मविश्वास के रूप में, एक आशा के रूप में, जैसे कोई नवीन सूर्योदय हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जिस समय मनुष्यों के अंदर यह विश्वास जाग जाता है कि हम कमजोर नहीं है, हम केवल हमेशा गिरे हुए, इस प्रकार से ये भाव हमारे अंदर इस समय आ गया था मानसिकता में, हम तो उनकी संतान हैं जो सूर्य के पथ को साथ चलने का साहस करते थे। हम उनकी संतान हैं। ऐसी ऐसी कहानियां अद्भुत। उनमें से एक कहानी का स्मरण, नारी महिला जागृति का मंच है तो बहुत सटीक है। एक बार आश्रम में एक फिल्म दिखाई गई थी और फिल्म थी सती अनुसुईया के ऊपर। आई एम श्योर नाम सुना होगा सबने और कहानी भी जानते होंगे, तो विशेष विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उस कहानी का मूल ये था कि एक बार तीनों देवियां वो आपस में इस प्रकार से उनके अंदर भाव जागता है कि हमसे अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता है। प्रेम, परस्पर प्रेम की हम पराकाष्ठा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नारद जी इज द डिवाइन कम्युनिकेटर। वो उधर की बात इधर, इधर की बात उधर नहीं करते हैं। वो भगवान की बात पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक की बात भगवान को जोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि देवी आपका विचार तो बड़ा उत्तम है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे मनुष्य हैं, कुछ ऐसी देवियां हैं जिनके हृदय में और भी उज्जवल प्रेम पनपता है। अब ये बात तो असह्य है। जहां ये भाव आता है कि मैं दूसरे से बड़ा हूं, वहां ये समस्या प्रारंभ हो जाती है। तो वो परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पति देव, लिटरली दे आर देव्स, देवता, पति देवता, देवता जो पति है उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप जरा जाके देखिए ये कौन है। और वो जाती हैं, अनुसुईया की परीक्षा लेती हैं और इसका परिणाम ये होता है अंत में कि अनुसुईया शब्द देखिए बड़ा सटीक। अनुसुईया शब्द का अर्थ है विदाउट जेलसी, विदाउट जेलसी। तो वो उन तीनों को शिशु बना देती हैं, बच्चे की तरह, और मातृत्व भाव से उनको अंदर कक्ष में सुला देती हैं खिला पिला के। बहुत देर हो जाती है, तीनों देवियां ढूंढने के लिए आती हैं
यहाँ पहुँचती, कहती हमारे पति आए थे यहाँ पर, ऐसा कुछ सुना है। तो सती अनुसुईया कहती है अंदर है, ढूंढ लो, पहचान लो और लेके चली जाओ। तो देखती तीनों बच्चे के रूप में कैसे पहचाने। ये कहानी जब आश्रम में दिखाई गई थी तो माँ खूब हंसी, और फिर उन्होंने हंसने का अपना कारण बताया। कहती है कि ये सच है कि मनुष्य ही इस तरह का प्रेम कर सकता है, और उसका कारण बताती है कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है जो सारे संसार में नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं। ये बात यम नचिकेता के संवाद में भी आती है, जब नचिकेता कहते हैं मुझे रहस्य चाहिए, द हाईएस्ट सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी, तो कहते हैं देवताओं को भी ये पता नहीं है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो माँ कहती है कुछ ऐसा है मनुष्य में जो देवताओं के पास भी नहीं है, और जिसके कारण वो, हालांकि वो इतना नीचे इस समय अपनी अवस्था में, लेकिन देवत्व को भी लांघ सकता है, अनंत ब्रह्म के साथ एक हो सकता है, ब्रह्मभूत हो सकता है। और फिर वो कहती हैं दैट सीक्रेट इन मैन इज द साइकिक बीइंग, क्योंकि हम सबके अंदर चैत्य है, हमारा प्रेम सच्चा हो सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं, इसमें मैं तो शब्द ऐड करना चाहूंगा इस अद्भुत कहानी में, कि भारतवर्ष में ये परंपरा रही सती की, सता की नहीं। नारी ही केवल ऐसा प्रेम कर सकती है कि उसमें सत्य का संपूर्ण सम्मिश्रण हो। इसीलिए ये श्रेय केवल नारी को दिया गया था। उसके अंदर ये तपस्या की शक्ति एक अलग प्रकार की। तपस्या से हम लोग हमेशा सोचते हैं ऋषि वहां चले गए, आंख मूंद लिया, और नारी खुली आंख से तप करती है। मैं जानता हूं कि ये मेरा वो ओरिजिनल वाला संबोधन नहीं है, तो बस एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि फिर बहने लगती है गंगा। एक आश्रम की बात है, मुझे एक सज्जन मिले और कहने लगे कि श्री अरविंद माता जी से कनेक्टेड नहीं था, कहीं और था। तो मुझे बड़े गर्व के साथ कहने लगे मैंने संसार त्याग दिया। तो मैंने कहा क्यों त्यागा? बोले साधना करने के लिए। तो मैंने कहा मतलब आपका क्या हुआ? कहते कि मैं शादीशुदा था, मेरी 6 बेटियां थीं। फिर एक दिन मैं जीवन से, मैंने कहा ये क्या है संसार, छोड़ करके मैं आश्रम चला आया। तो मैंने उसे केवल एक ही बात कही, मैंने कहा आश्रम में आप हैं, लेकिन साधना आपकी पत्नी कर रही है। तो ये खुली आंखों से तप, खुली आंखों से साधना, खुली आंखों से योग, जड़ जगत को भगवान के साथ जोड़ना, केवल एक विचारों के उड़ान में नहीं रहना, ये अद्भुत काम ईश्वर ने नारी को सौंपा है। सबको शत शत नमन। और सभी नारियों का अल्टीमेट प्रतिनिधित्व द इटर्नल फेमिनाइन डिवाइन मदर, दिव्य जननी, और उनका यह स्वरूप, उनको शत शत नमन। धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड ऑफ कोर्स नारियों को सत सत नमन। मैं हमेशा वो यही बोलती हूँ कि भगवान का अगर सबसे सुंदर क्रिएशन, भगवान का सबुठु सुंदर सृष्टि जदि पूरा दुनिया रे पूरा पृथ्वी रे किए से होचंदी नारी। और नारी माने जहाँ करि परंती ता दुनिया रे केही करि परंते नहीं। जो नारी करने के लिए सक्षम है और जितनी सारी तकलीफें लेने के लिए सक्षम है और जितनी सारी खुशियां बांटने के लिए सक्षम है, वो शायद ही दुनिया में कोई कर सकता है। सो एक बारी नारियों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड वी आर रियली हैप्पी that we are a part of this first national conference of Sri Aurobindo Mahila Pathachakra. So moving ahead to our next guest, and she is none other than our chief guest. So now I would like to request our chief guest, Secretary Aurobindo Foundation, Dr. Jayanti Ravi, to kindly give away her speech. Please, ma'am.
सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपकी अनुमति हो तो मैं श्री अरविंदो गायत्री के साथ शुरू करना चाहती हूँ और आप सबसे अनुरोध है, आप भी, क्योंकि ये जो उड़ीसा के अंदर जो एक अद्भुत काम 1975 से शुरू किया गया है। मैं आज आ रही थी तब बिजॉयनी दी, श्यामा दी से भी मैं मिली हूँ काफ़ी बार। उन्होंने जो कहा कि यहाँ जो महिला पठ चक्र विमेंस स्टडी सर्कल्स का एक बीजारोपण जो बाबा जी रामकृष्ण दास जी की प्रेरणा से इन दोनों बहुत ही डेडिकेटेड जो लीडर्स हैं महिलाओं के क्षेत्र में सुंदर नेतृत्व अदा कर रही हैं, उन्होंने जो शुरू किया है, तो आप सब श्री अरविंदो गायत्री जानते होंगे। तो शुरुआत में हम लोग साथ में श्री अरविंदो गायत्री गाते हैं। ओम तत्सवितुर्वरं सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। आज एक बहुत ही सुंदर दिन है, एक अद्भुत काम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज शुरुआत में सबसे पहले मैं यहाँ के जो आयोजक हैं डॉक्टर श्यामा कानंगो जी, बिजॉयनी जी, जो दोनों एक अद्भुत काम का निर्माण, और इस बारी ये जो कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, माँ की कृपा से इसका शायद एक साल पहले जब 150वीं श्री अरविंदो की जन्म जयंती की परिकल्पना कर रहे थे कि कैसे उत्सव मनाया जाएगा, तब शायद इस कार्यक्रम का उसके अंदर उल्लेख नहीं था। लेकिन इनको जो प्रेरणा हुई और उन्होंने जो कोशिश की, और माँ की कृपा से इसके सभी जो दरवाजे हैं, जो क्योंकि अल्टीमेटली जैसे श्री अरविंदो कहते हैं, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर, एंड आई थिंक दिस इज अ क्लियर टेस्टिमनी। इससे बहुत साफ जाहिर होता है कि इसमें माँ के आशीष हैं, श्री अरविंदो की बहुत ही एक प्रेरक पुनीत उपस्थिति है, उनकी ग्रेस है, उस वजह से कार्यक्रम हुआ है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर इंजीनियर श्री मुकीम जी, उनसे अभी मिलके बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जो हम कहते हैं साहस की बात, जो श्यामा दी ने भी बताई कि अक्सर एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ होता है हम सब के जीवन में। जैसे महात्मा गांधी एक विद्यार्थी थे, हम सब उस कहानी को जानते हैं कि जब उनके स्कूल में, यहाँ क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, मैं सोच रही थी आलोक जी से थोड़ी प्रेरणा लेते हुए कि थोड़ी कहानियाँ और उल्लेख भी करें, जिससे कि आप सब, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही सरल हैं, सीधी हैं, लेकिन ऐसी बातें हैं जो हम सबको प्रेरणा देती हैं, छू लेती हैं, हमें एलिवेट करते हैं, हमारा एक उद्धार भी करती हैं। तो वो स्कूल में जब पढ़ रहे थे, हम जानते हैं कि एक बार उनकी शाला में इंस्पेक्शन का एक
एक घटना, इंस्पेक्शन की घटना हुई, तब उनको उनके वर्गखंड में जो शिक्षक थे, शिक्षक ने सबको एक शब्द जिसे हम शुद्ध लेखन कहते हैं, डिक्टेशन एक शब्द कहते हैं, और सबसे लिखाया जाता है। शब्द था केटल, यानी कि जो चाय की केटली होती है, केटल। तो सबने सही जवाब लिखा, लेकिन एक छात्र थे जिन्होंने सही जवाब लिखा नहीं था, और शायद उनको गलत तरीके से शिक्षक ने कोशिश भी की उनको एक संकेत देने का कि आप अपने बगल में जो बैठे हैं विद्यार्थी, उसने सही लिखा है, उसे देख के आप कॉपी कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, एक संकेत शायद दिया था। लेकिन वो जो बच्चा था उसके लिए वो एक, जैसे अभी हमने शुरुआत श्री अरविंदो गायत्री से की, जिसमें सत्य को हमेशा चकड़ के पकड़ के रहने की बात श्री अरविंद कहते हैं, और सत्य ही हमारी जो चेतना के अलग अलग आयाम हैं हमारे अंदर, अलग अलग डायमेंशन से, उसे भी ऊंचा करती है, ले जाती है। सत्य की वजह से हम ऊपर जा सकते हैं। तो इस बात का शायद उस बच्चे को भी तब ख्याल था, सत्य के प्रति उपासना, और उसने वो बात नहीं मानी जो सत्य के विरुद्ध था। और फिर हम जानते हैं कि फिर वो बहुत बड़े एक देश के राष्ट्रपिता का भी दर्जा उन्हें मिला है। महात्मा गांधी की बात कर रही हूँ। लेकिन अभी अगर हम इस बात पर आते हैं कि ये जो इंजीनियर जी, अभी हमारे जो मुकीम जी हैं, उन्होंने जो आज हमारे समक्ष जो बात रखी कि उनको भी वो करेज ऑफ कन्विक्शन था कि द्रौपदी मुर्मू जी जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी नहीं थी और उनका नॉमिनेशन चल रहा था, he had the courage of conviction to go ahead and do what was right, and I deeply appreciate that. We are also very happy here कि आलोक पांडे जी हैं, आप सब हैं, विभा जी, खास मेरी मित्र भी हैं, गुजरात में बहुत काम किया है, of course अमिता जी भी अभी हैं, और we also have Chanamay ji from Hyderabad and many distinguished people here. ये जो 150वीं जन्म जयंती है श्री अरविंद की, आप जानते होंगे कि इसके लिए एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत उच्च स्तरीय, एक सुंदर हाई लेवल कमेटी की भी रचना की है, जिसमें वो स्वयं अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। और उसमें इस बार अलग अलग जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, अध्यात्म के जो नेतृत्व भारत भर में, विदेश में भी जो करते हैं, उन सबको उन्होंने जोड़ा है, क्योंकि श्री अरविंद की जो डायरेक्ट एक्शन, उनकी जो टीचिंग्स है, थॉट्स, फिलॉसफी, उस सब में एक्सक्लूसिविटी नहीं है। ये नहीं है कि दूसरे अलग हैं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है, सब, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी कहते हैं आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, के हर तरफ से जो अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, उसे हम क्यों ना सीमित कर ले, हमारे साथ सम्मिलित कर ले, उस सब को हम एम्ब्रेस कर ले, जिससे कि हमारा प्रगति हो सके। और उसमें मुझे बहुत आनंद होता है कि अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ था, जिसमें श्री अरविंद, महर्षि अरविंद, जिसे हम लोग श्री अरविंदो कहते हैं, उनका स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था। और उस कार्यक्रम में भी उन्होंने उनके बचपन के बारे में और किस तरह से उनके पिताश्री की कोशिश थी, श्री अरविंदो के पिता ने उनका नाम तक, श्री अरविंद, बीच का नाम क्या रखा था उन्होंने? आप सबके लिए प्रश्न है। एक्रॉयड करके एक नाम रखा था। उनकी इच्छा थी कि वो अंग्रेज की ज़्यादा उनके ऊपर असर रहे और भारत की, भारतीयता की छाया तक उनके ऊपर न पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि ये शायद मेरे बेटे के लिए, शायद अंदर से उनके इरादे, बेटे के लिए प्रेम ज़रूर था, जो अभी अनसुया जी ने बात आलोक जी ने कही, लेकिन शायद उनमें उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि किस दिशा में ले जाना है। और भेजा गया इनको इंग्लैंड, और बिल्कुल भारत से दूर, भारतीयता से दूर रखने की कोशिश ज़रूर की। लेकिन जब वो भारत में आए, जब उन्होंने यहाँ अपने पैर रखे,
तब से बिल्कुल भारतीयता, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि विद अ वेंजेंस, बिल्कुल उनके अंदर वो हर तरह से भारतीयता ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया था। और इससे हमें भी एक बहुत बड़ी आश्वासन मिलती है कि अक्सर कि कोई अगर हमें कई जो चीज़ें हमें वारसाई में कि हमारी हेरिटेज में मिलनी चाहिए, जैसे हमारी जो इंडियन कल्चर है, संस्कृति है, भाषाएं हैं, विचार हैं, हमारे जो अच्छे अच्छे कहानियां हैं, ये सब अगर कभी बीच में रुकावट या रुकाव आता है तो भी ये चीज़ें इतनी इसके अंदर शक्ति है, ताकत है कि वो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल हमारे अंदर अंकुरित होके बिल्कुल एक बड़े मात्रा में ज़रूर उगेंगे, एक वटवृक्ष की तरह। और ये हमने श्री अरविंद के जीवन में भी देखा है। जहाँ तक उड़ीसा की बात है, और जो एक सुप्रीम सिंसियरिटी, फेथ और सरेंडर की भावना मैं आप सबके आंखों में देखती हूँ, इसको देख के बिल्कुल बार बार आप सबको नमन करने का, प्रणाम करने का, सल्यूट करने का मन करता है। तो मैं जितना कहूँ कम है। आप सबके लिए मेरा प्रणाम। और जो यहाँ बाबा जी ने एक खास, एक रहस्यमय चीज़ दी है, वो है नाम जपा, इज़न्ट इट? वो उन्होंने पूरी जीवन, और श्री अरविंद ने भी इसका बहुत महत्व बताया है, क्योंकि हम जो अपना काम करते रहे, एक हमारे यहाँ शास्त्र में एक उपमा दी जाती है। देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ अ लेडी, जो एक महिला होती है और रस्सी के डोर पर बिल्कुल ज़मीन से ऊपर, जो दो लकड़ियों के बीच जब एक रस्सी होता है, उसके ऊपर उसे एक नृत्य करना होता है। और नीचे, जैसे अभी आपने बहुत ही अच्छा, हमने वाजिंद्र सुने, ताल वाद्य कचेरी से एक बहुत सुंदर एक उद्घाटन, एक सुंदर नाद का एक नादोपासना भी हम कहते हैं हमारी संस्कृति में, उससे शुरुआत हुआ। तो इस तरह से नीचे से लोग एक ढोलक पर बजाते हुए एक ताल देते हैं, और ये जो महिला है ऊपर, वो ताल के साथ एक लकड़ी को अपने हाथ पर पकड़े हुए उस रस्सी पर चलती है, और साथ में उसके माथे पर एक पानी का घड़ा भी होता है जो भरा हुआ होता है पानी से, लेकिन उसको लेके वो बिल्कुल एकाग्रता के साथ और श्रद्धा के साथ, क्योंकि इन सब चीज़ों में श्रद्धा का बहुत एक अमूल्य उसकी एक उपस्थिति होती है, तभी ये सब कर सकते हैं। वो उसको बिल्कुल पार कर जाती है बिना गिरे। और अपनी जो हमारी स्क्रिप्चर्स में इस चीज़ का उपमा देते हुए कहा जाता है कि हम अपनी रोजिंदा जीवन में जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, जैसे अभी आलोक जी ने कहा, एक पति और पत्नी के बीच में उन्होंने कहा कि साधना करने के लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में आया हूँ, पर सही साधना तो शायद उनकी पत्नी कर रही है, क्योंकि साधना का नाम, और यही चीज़ श्री अरबिंदो ने सीक्रेट ऑफ द वेदास खोद के फिर से हमें दिया कि साधना का सही अर्थ ये नहीं है कि हम संन्यास ले लें, सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाएं और ऐसे लगे कि बिल्कुल एक अनुकूल वातावरण में हम अपना संयम बनाए रखें, एकाग्रता बनाए रखें। लेकिन कहते हैं कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति है, समस्या है, सभी प्रकार की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब के बीच में भी हर तरफ से कोई न कोई आक्रमण है, तो भी आप किस तरह से बिल्कुल शांति से प्रोग्रेस, अपना जो काम है उसे आगे कर सकें, उसी को भारतीय वैदिक नॉलेज, सीक्रेट ऑफ द वेदास, वेदा का जो रहस्य है उसमें यही कहा गया है कि हमें कहीं भागना नहीं है, अपनी जो जीवन है उसको बिल्कुल हमें गले लगाना है, और उसमें रहते हुए जैसे वो औरत नट प्रदर्शनी करती है, रस्सी पर चलती है, इतनी नीचे ताल का ख्याल रखते हुए, पानी का घड़ा रखते हुए, उस तरह सब कुछ करते हुए हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? हमेशा ईश्वर तत्व पर, दिव्यता पर, दिव्य माँ पर। और इसीलिए नाम जप का भी बहुत एक मुख्यत्व, महत्व है। यहाँ काफ़ी बच्चे भी हैं, और आप सब जानते होंगे कि श्री अरबिंदो ने ऐसे किसी एक धर्म
के साथ जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने, जैसे आप जानते हैं, बचपन यौवन विदेश में पसार किया। भारत में आने के बाद उन्होंने उनके जीवन में 13 साल बड़ौदा में रहे और वहाँ महाराजा सयाजी राव के यहाँ कॉलेज में उन्होंने सिखाई और बहुत सारी उनके बहुत ही होनहार बच्चे, जैसे भारतीय विद्या भवन के स्थापक कमा मुंशी, ऐसे बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स थे जो भी बहुत विभूति महत्वपूर्ण उनका भी योगदान भारत के लिए रहा है। उसके बाद बंगाल में गए। उनके जीवन में तब एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कहते हैं, क्योंकि वो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्वतंत्रता वाला जो संग्राम था, आंदोलन, उसमें एक रेवोल्यूशनरी के तौर पर उन्होंने काम किया और उन्हें जेल भी एक अंडर ट्रायल के रूप से उन्हें जाना पड़ा। और वहाँ उनकी जो एक अनुभव हुई, उन्हें श्री कृष्ण काली का एक प्रत्यक्ष उनके साथ मुलाकात उनकी हुई थी। और उसी तरह से वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ भी मुलाकात हुई थी। उनसे बहुत प्रेरणा मिली कि आपको आपके जीवन का पूरा रास्ता आपके लिए कुछ और लिखा गया है, कुछ और प्रावधान किया है। और उसके बाद उत्तरपाड़ा का जो उनका प्रवचन है वो भी बिल्कुल उसके एक एक शब्द में, मैं तो कहती हूँ कि इतना ताकत, शक्ति, उत्साह है, हम सबको उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसके बाद जब वे पौंडीचेरी आके फिर वहाँ उन्होंने जो उनके अंदर की यात्रा को बहुत वेग दिया, तब अद्भुत काम और इतने सारे ग्रंथ, किताब, डायरेक्ट एक्शन और पूरा आश्रम ऑरोविल की स्थापना में भी उनका एक बहुत ही अमूल्य, वही उनके पीछे है। माता जी उनकी स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी और श्री माँ उनकी आध्यात्मिक सहयोगिनी होने की एक भूमिका से उन्होंने ऑरोविल की स्थापना की। उस विचार से जो श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन में भी कहा है, एक नॉस्टिक सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ पर सभी लोग बिल्कुल उनकी अभीप्सा, हमेशा डिवाइन अभीप्सा उनकी चालू रहेगी, विविधता के साथ उनका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ हमेशा होगा। लेकिन वो अपने हाथ से, मन से, शरीर से जो भी काम, उसमें सुंदरता होगी, भव्यता और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक करकसर युक्त, इसमें भी समृद्धि होगी, सुंदरता होगी, ऐसा काम हर क्षेत्र में करने के लिए उन्होंने एक प्रावधान किया है। आज इस मौके का मैं उपयोग करते हुए आप सबको तहे दिल से ऑरोविल में आमंत्रण देना चाहती हूँ। आप सबको विजिटर के तौर पे आप वहाँ पर देखने के लिए ऑरोविल में आ सकते हैं। उतना ही नहीं, आप में से जितने लोगों की इच्छा हो कि वहाँ आके वॉलंटियरिंग, आपको अगर कुछ वहाँ पर वॉलंटियरिंग करना हो, सेवा देनी हो, वहाँ उस भूमिका से भी आप आ सकते हैं। और कोई इंटर्न्स बच्चे हैं जो कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, अगर यंग पीपल आके कोई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स करना चाहे तो हम सब उन सब को भी वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं। और आज लास्ट एक कहानी कहना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत हैं। बहुत साल पहले आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का ये पाठ सर्कल, पाठ चक्र, स्टडी सर्कल जो इतने सालों से चल रहा है, आप सब अद्भुत काम कर रहे हैं। आज भी 5 सपनों का भी एक्शन गीत आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया था। वंदे मातरम का जो गान हो रहा था, जिस तरह से आलोक जी ने कहा, मुझे भी ऐसे अनुभव हुए जैसे कुछ सुनहरी रंग का कुछ बहुत ही स्पेशल, एक उसे द्रव्य पदार्थ तो नहीं कह सकते, वो यहाँ से ज़मीन से बिल्कुल निकल रहा है। पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में इसकी जो पार्टिकल्स हैं हर जगह जा रही हैं। और प्रेम जो है, जिसे दैविक दिव्य प्रेम का जो सुप्रामेंटल लव है, हर जगह प्रसार हो रहा है, वो अनुभव हुआ। और उसमें जैसे श्री अरविंद हमेशा इंक्लूसिव थे, ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए है और ये बिल्कुल ये मना है, ऐसे नहीं था। और ये एक सार्वभौमत्व और सर्व समावेशी जो उनका एक पूरा व्यक्तित्व था, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उसी को देखते हुए एक कहानी, बहुत सालों पहले एक माँ थी,
मुकीम साहब हैं उनको ये कहानी अच्छी लगेगी। ये एक शाही परिवार की एक माँ थी और उनका जो बेटा था, छोटा सा लड़का था, उसका नाम था फरीद। और माँ होती है, उनकी इच्छा थी कि ये मेरा बेटा कहीं अय्याशी और गलत रास्ते पे न चल जाए, क्योंकि बहुत ही एक शाही कुटुंब में उसने जन्म लिया था। तो माँ उससे रोज कहती थी कि बेटे तुम्हें इबादत करनी है, उपासना प्रार्थना करनी है, और जब प्रार्थना करोगे बिल्कुल दिल से तो तुम्हें एक शक्कर का टुकड़ा मिलेगा, तुम्हें अल्लाह खुदा भगवान एक छोटी सी मिश्री का टुकड़ा देगा। अब छोटा बच्चा था, श्रद्धा से रोज वो अपनी इबादत करता था, प्रार्थना करता था, आंख बंद करके बिल्कुल जब प्रार्थना करता था चोरी चुपके उसकी माँ वहाँ जाके एक छोटा सा शक्कर का टुकड़ा रख देती थी। और ये सिलसिला बहुत सालों तक चला। और एक ऐसा दिन आया जब ये लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था, शायद 17-18 साल का एक युवान लड़का, उसकी श्रद्धा बिल्कुल थी। उस दिन उसने प्रार्थना की और कोई ऐसे संजोग थे कि माँ जाके वो जो चोरी चुपके शक्कर रख देती थी उस दिन नहीं रख पाई। तो जैसे ये प्रार्थना हो रहा था, माँ भी बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से एक प्रार्थना कर रही थी। कह रही थी देखो मैंने झूठ ज़रूर बोला है इतने सालों, लेकिन मेरी जो इच्छा थी, मेरे जो इरादे थे बिल्कुल सही थे। और ऐसा आज तुम कुछ नहीं करोगे जिससे कि मेरे बेटे का तुम पर विश्वास टूट जाए, बिल्कुल उसका विश्वास बरकरार रहे तुम पर। ऐसे वो परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करती है, बिल्कुल एक फर्वेंट प्रेयर जिसे कहते हैं करती है। थोड़ी देर बाद वो बेटा अपना आँख खोलता है और फिर माँ की तरफ चलते हुए आता है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी होती है। माँ को लगता है अब ये कुछ कहने वाला है मुझसे, और थोड़ी डरी हुई होती है। उस दिन बेटा उसे देख के कहता है शक्कर खंड निवार गुड़ माखियो माजा दूध सभ्य वस्तु मीठियाँ रबने भोजन दूध। इसका मतलब है शक्कर खंड यानी खांड, वो भी शक्कर का ही एक दूसरा फॉर्म है। निवात गुड़, माखियो यानी मध, हनी, ये सब चीज़ें मीठी हैं, पर इन सब से कहीं ज़्यादा मीठी का कौन सी चीज़ है? भगवान का जो नूर है, उसकी जो असली मिठास है वो कहीं ज़्यादा मीठी है। तो उसे उस दिन प्रदीप्तिकरण या साक्षात्कार हुआ। और ये जो लड़का या उसके बाद जो बड़े होके उनके नाम पर आज भारत के अंदर पंजाब में एक शहर भी है। कोई कह सकता है कौन सा शहर है ये? लड़के का नाम फरीद था, फरीदकोट। और ये एक बहुत बड़े सूफी संत हुए बाबा फरीद। और गुरु नानक देव जी जिनकी गुरु ग्रंथ साहब है उसके अंदर इनके भी गीत या शब्द उसके अंदर सम्मिलित हैं। और श्री अरविंदो ने गुरु नानक देव जी के लिए भी कहा है कि वो एक बहुत ही, जैसे उनका जेल के बाद एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। श्री अरविंदो अलीपुर जेल में थे, उसके बाद अनुभव के बाद जो एक चेंज आया, वैसे ही वो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी से एक बहुत बड़ा भारतीय और विश्व चेतना में एक बड़ा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कहते हैं कि रिलीजन से हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब ये जो धर्म का एक अर्थ लेते हैं कि अलग अलग धर्म हैं, उससे हम अध्यात्म की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। ये योगदान उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को दिया है। तो फिर से ये जो अद्भुत पहली इसलिए हम भारपूर्वक कह रहे हैं श्यामा जी और बिजॉयनी जी और आप सब कि ये पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी ये बिल्कुल एक अविरल चलती रहनी चाहिए। पहली राष्ट्रीय श्री अरविंदो महिला
पथचक्र समारंभ जो हुआ है इसमें उपस्थित रहते हुए बहुत ही आनंद अनुभव कर रही हूँ और मैं आप सबको शत शत प्रणाम, वंदन, अभिवादन देना चाहती हूँ। एक उत्कृष्ट काम यहाँ हो रहा है और इसका जो एसेंस है, सारांश है, ये पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में इस बहुत ही महत्व के अवसर पर जाना चाहिए। ऐसी मेरी माँ और श्री अरविंद के चरण कमल में मेरी एक प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करना चाहती हूँ। नमस्कार। Thank you so much, Ram, for your inspiring speech, and thank you so much for those wonderful stories. And I hope यहाँ पे जितने लोग हैं सबको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं भी पीछे बैठ के मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। So I hope and I wish कि मैम की बातें सबको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। Thank you so much, and moving ahead, now I would like to request our organizing secretary, Dr. Vijayini Mahapatra, to propose the vote of thanks. Please, ma'am. Master Arvinda, our honorable dignitaries in the dais and off the dais. By Mother's grace, we have started the first national Sri Aurobindo Mahila Patachakra conference here. Actually, we all are in a very exceptional period on the earth when the supramental force is pouring and pouring on us. Again, we are fortunate that we are born in India, as told by Sri Aurobindo that India will be the Vishwa Guru. Again, we are fortunate that we are born in Odisha, because the divine love of Lord Jagannath flows every nerve and cells and vessels of our body without our knowledge of its importance. Again, we are fortunate that we are born in a state where people like the great visionary Babaji Maharaj is born here on this soil, and he was quite instrument and our guide to give direction mother's activities, all the different activities as told by Samahapa, Dasakarma Dhara, including the women's activities in the state. He was only our inspiration and brought down here the love of the mother to the people of Odisha, heart of women of Odisha. We express our gratitude and first I express my deep gratitude to all my sisters from the state and outside the state. My deep gratitude to them, our gratitude to our beloved chief guest of the day, chief guest of the conference, Madam Dr. Srimati Jayanti Ravi, Secretary, Aurobindo Foundation, for her sweet, unassuming, friendly personality, encouraging us by her presence. We cannot be grateful enough for her accepting to grace this occasion as our chief guest. We acknowledge her help and reassurance at every crisis during the organization of this event, helping us out through many hurdles. All of us have heard her, how sweet she is. She is really mother's child. When I met her for the first time in Aurobindo near Mathurmandi, he was at that time reciting Omkar there. Really, I express once again my deep gratitude on behalf of all of the Odisha people for her support to us. We are grateful to our Honorable MLA, Kataka Baravati, Engineer Muhammad Mukim sir, who took it upon himself to help us out at every stage, the venue being his electorate. Like a brother, he has extended his sympathetic help and assistance and advice at every step. He has supported in many things, including accommodation. Every day, almost most of the time, he was asking any help, how the work is going on, and his love and deep interest in this activity. For that, actually, we express
our deep gratitude, and I pray Mother her grace for him. I am very grateful to Dr. Alok Pandey from Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, for accepting our request. Actually, Alok Bhai is very close to us and in a part of us in all activities of the state. Whenever we are having any conferences like our Vishwanatha from West Bengal, Alok Bhai is very close to us in all our activities. When I requested him for the 5th and 6th, he told it's not possible for him to come. I was thinking and that means nobody is coming from ashram. I was feeling very sad inside my being. I told to Samadidi, and Samadidi again had gone to Pondicherry, and when she has written to Dr. Alok Pandey, and he told me that Dr. Alok has agreed to come. Actually, I am very grateful to the mother that at least Alok Bhai is with us, carries the divine presence to this activity. I am very grateful to him. In this activity, many people, many dignitaries have supported us. To mention few, like the Sports Secretary, Sri Vinay Krishna, the Sports Secretary, and the District Collector of Cuttack, and the Mayor of this district. They have helped us in different activities, and the Commissioner of this police, the Municipal Commissioner, and the police people, everybody has helped this activity. And we are very grateful to our very friendly Devashish Bhai, who is part of us, Devashish Samantra, ex-MLA of Cuttack Baravati, for his support and active encouragement. We are grateful to our dear Sri Janmaja Mahanti, who has taken the responsibility of cultural activities and some event managements. We have seen part of his activities today morning. Again in the evening there is a very great event, India and Future. Zone centers, Sri Aurobindo Institute of Education of the state. Everybody has helped in this activity. We all are working like a family. We are very grateful to everybody. Actually, if we say, we organizers is a mere person. Neither Samadhi nor myself. Nobody can do this work except the divine. Whatever work has been done, the main objective is only to raise the consciousness of woman with the supramental consciousness and open ourselves and prepare our body, mind and vital, everything to the divine supramental force and the psychic being to come to the front. We all know this. So actually it's not a human being capacity. So for everything, we have to remain always grateful to the Divine Mother and Sri Aurobindo. And this is exceptional time because 150th birth anniversary is there of Lord Sri Aurobindo's 150th birth anniversary. Wonderful time, exceptional time. Whatever work we do, what Mother Sri Aurobindo has wished for a newer, higher species, the work will be done because the work is done by the supramental force, by Mother and Sri Aurobindo. So we have only to surrender. So our gratitude at the feet of the Mother and Sri Aurobindo. In this activity, always, Prananda, who is the Director of Physical Education, in Sri Aurobindo Ashram Pondicherry, who has helped us, encouraged us always. And we express our gratitude to him. So my last gratitude, and we are very grateful. This on behalf of everybody, I express my deep gratitude and love at the feet of the Mother and Sri Aurobindo. Vande Mataram. Victory to the Divine Mother. Jai Hind. Thank you, ma'am.